Hello guys, welcome back to She Code. So in our top 100 code series where we are solving some top 100 Java programs, our problem 47 is to reverse a string. In this series of top 100 code series, we have already done problem number 9 on reversing a number and problem number 37 on reversing an array. Now in our problem number 47, we will be reversing a string. This is again very important and a very common question which you need to do before you go for any interview, because it is a very easy yet important question. How can you reverse a string in Java? Reversing a string means you have to reverse it. You have to bring the last part to the first and the first part to the last. How? Let's take an example of a string. For example, this is your string. For example, this is your string and you have to reverse it. Reverse करने के बाद ये कैसे दिखेगी? So after reversing, our string would look like this. That means we have reversed it. सारे जो कैरेक्टर्स, जो अल्फाबेट्स हमारे राइट साइड पे थे वो लेफ्ट में आ गए और जो लेफ्ट में थे वो राइट में चले गए. रिवर्स, इट इज अ वेरी बेसिक थिंग. अब जावा में हम इसको कैसे करेंगे? हाउ यू विल राइट अ जावा प्रोग्राम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होती हैं. पहला तो हमारा होता है फॉर लूप. Now, if you are a part of top 100 code series from the very beginning, that is from problem number 1, I don't think you will be having any problem solving it with the for loop, because we have already done two problems where we have used for loop to reverse the array, reverse a number. So reversing a string is not a big deal. तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस सीरीज का पार्ट हैं शुरू से तो यू विल बी हैविंग एनी प्रॉब्लम. अब दूसरा मेथड हम क्या यूज कर सकते हैं? दूसरा मेथड है यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर क्लास. दूसरा मेथड जिसकी हेल्प से हम हमारे स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं वो है यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर क्लास. स्ट्रिंग बिल्डर क्लास में वो कैसे करेंगे? हम स्ट्रिंग बिल्डर क्लास की हेल्प से हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे. उस ऑब्जेक्ट में हमारी स्ट्रिंग को हम अपेंड करवा देंगे, हम उसमें ऐड करवा देंगे. String builder class has a method called reverse which automatically reverse our string. String builder class को हम यूज ही इसलिए करते हैं ताकि हम हमारी स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सके. बिकॉज इन जनरल जावा में स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती है. इम्यूटेबल होती है मतलब जो स्ट्रिंग हमने बना ली अब हम उसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, वो वैसी की वैसी रहेगी. अगर हमें हमारी स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना है, कोई चेंजेस करना है, तो उसके लिए हमें नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी. यू हैव टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग टू मॉडिफाई द ओरिजिनल स्ट्रिंग इन जावा. बट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर यू कैन modify your original string without creating a new string, because string builder class is used to create mutable strings. So today we will use both the methods to see how we can reverse a string. So first we will reverse a string using a for loop, and then after that we will reverse a string using string builder class. So without any delay, let's start with the program. So here we are in our IDE. हाँ, यहाँ पे हमारा problem 47 class है, उसके अंदर main method है. अब हम क्या करेंगे? पहले we will create a string s which is equal to, for example, if you take welcome. अब हमें क्या करना है? हमें इसे रिवर्स करना है. तो रिवर्स करने के लिए हमें अगेन एक और स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी. इफ यू कॉल इट रिवर्स. और इस रिवर्स स्ट्रिंग में इनिशियली अभी ये स्ट्रिंग एम्प्टी है, अभी हमने उसमें कुछ भी नहीं किया है. सो दिस रिवर्स स्ट्रिंग इज इनिशियली एम्प्टी. नाउ एज आई सेड इन द फर्स्ट पार्ट वी विल बी यूजिंग फॉर लूप. तो फॉर लूप यूज करेंगे. फॉर लूप के लिए इंट I equals to, since we have to reverse it, हमें क्या करना है? We have to reverse our string. So while reversing, you bring the last part to the first. We will start with the last part. So initially the value of I will be s dot length. Okay, मतलब कि जो for loop है हमारा, I की वैल्यू है वो 0 से ना स्टार्ट होते हुए वो कहाँ से शुरू होगी? E से. That is the last element of the string. Now
this I will run till its value is greater than equal to 0, and we will decrement the value of I. As we come to the first index, we will keep decrementing the value of I. बस हो गया. अब क्या करेंगे, हमारा जो रिवर्स वेरिएबल है, जैसे जैसे ये फॉर लूप आइटरेट होगा ओवर ईच कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, वैसे वैसे हमारे रिवर्स में उस इंडेक्स का कैरेक्टर स्टोर होता जाएगा. As our for loop is iterating from the right to left, okay, as our for loop is iterating from the very last element to the first element, so after each iteration, these elements or these characters of the string will be getting stored in this reverse variable, and hence we will get our reverse string. So reverse is equal to reverse plus, now we have to store each character. For that we will write s dot character at I. S dot character at I will get us the character that is present at that iteration. So this character will get added in a reverse variable, and like this after every iteration characters will be getting added to a reverse variable and we will get a reverse string. That's it. You just have to do this much only. Now let's print our string. So here we will first print our initial string. Initially string कैसी थी. Now you can use scanner class as well to take string of your own choice. यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया. यहाँ पे हमारी string जो इनिशियली जो हमारी स्ट्रिंग है वो प्रिंट होगी. अब हमें क्या करना है, हमें हमारी रिवर्स्ड स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना. तो स्ट्रिंग आफ्टर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने एस स्ट्रिंग जो बनाई है, इस स्ट्रिंग में हमने कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं. ये स्ट्रिंग ऐसी की ऐसी ही है. हमने क्या करा है, हमने नई स्ट्रिंग बनाई थी रिवर्स, और उसमें हमने सारे कैरेक्टर्स स्टोर करे हैं, सारे कैरेक्टर्स ऐड करे हैं. तो हम इसको प्रिंट करवाएंगे क्योंकि हमारी जो रिवर्स स्ट्रिंग है वो हमें इस वेरिएबल के फॉर्म में मिलेगी. दैट्स इट, वी आर डन. लेट्स रन इट. ओके, एंड वी गॉट अवर आउटपुट. देखो, स्ट्रिंग बिफोर वेलकम और स्ट्रिंग आफ्टर में ये पूरा EMOCLEW पूरी रिवर्स होके प्रिंट हो गई. मतलब कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो गई. ऐसे रिवर्स करना था. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. कुछ नहीं करा हमने क्या करा, वी टुक आवर स्ट्रिंग वेलकम, उसके बाद हमने एक और वेरिएबल ले लिया रिवर्स. अब उस रिवर्स में हमने क्या करा, उसके बाद हमने एक फॉर लूप यूज किया. फॉर लूप कहाँ से यूज किया, हमने वेरी राइट एलिमेंट और वेरी राइट कैरेक्टर ऑफ दैट स्ट्रिंग से हमने फॉर लूप शुरू किया, और हर आइटरेशन में हम उस कैरेक्टर को हमारे रिवर्स वेरिएबल में ऐड करते गए. जैसे जैसे आइटरेशंस बढ़ती गई, सारे जो राइट साइड के कैरेक्टर्स थे वो रिवर्स में ऐड होते गए. तो मतलब कि क्या हुआ, हमारा जो आइटरेशंस था वो रिवर्स ऑर्डर में चला. हमें हमारी स्ट्रिंग रिवर्स होके मिल गई. अब as you saw we haven't done any changes in our original string. अगर आप अभी यहाँ पे वापस से यही स्ट्रिंग, ठीक है, मैंने वापस से s को प्रिंट करवाया. हम कुछ नहीं करते, हम बस s को प्रिंट करवाते हैं. फिर चेक कि हमारे s में कोई चेंजेस हुए हैं, तो हमारे s में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं. ठीक है, आफ्टर ऑल द आइटरेशंस फॉर लूप सब करने के बाद भी हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो वैसी की वैसी ही है. हमारी जो रिवर्स स्ट्रिंग है वो हमें दूसरे वेरिएबल में मिली है. ठीक है, अब जितनी बार भी रिवर्स को प्रिंट करवाओगे हमें हमारी एस वाली जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स होके मिलेगी, लेकिन जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो चेंज नहीं हुई है. अब हम देखेंगे दूसरा पार्ट. उस पार्ट में क्या होगा, वी विल बी यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर. सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पार्ट. सो यहाँ पे what we have done, we have taken a string s. Now we will create an object using string builder class. So string builder, यहाँ पे suppose we take a string sp. हमने ये sp ऑब्जेक्ट बनाया है string builder क्लास का. अब हम क्या करेंगे, पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो string है इस string को हमारे इस ऑब्जेक्ट में हम append करेंगे. sp dot we will use our append method to append our string s in our sp object. ठीक है, इसके बाद पहले हम क्या करते हैं, हम इसको यहीं पे प्रिंट करवा लेते हैं. ठीक है, स्ट्रिंग बिफोर, तो
तो ये वेलकम ऐसी ऐसी की ऐसी वो अपेंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एसबी ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का, हमने बनाया है, इसमें हमारी स्ट्रिंग है। अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर क्लास म्यूटेबल होती है, मतलब हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम हमारी सिंपली रिवर्स मेथड लगा देंगे, बस sp.reverse, डन, दैट्स इट। ये हो गई हमारी स्ट्रिंग रिवर्स। इसको रन करके देखते हैं, रिवर्स हो गई, हो गया, ठीक है। हमने क्या करा, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट ने पहले तो हमारी स्ट्रिंग को अपेंड कर लिया, अब इसी ऑब्जेक्ट को हमने रिवर्स कर लिया। फर्स्ट पार्ट में हम क्या कर रहे थे, हमें नया वेरिएबल बनाना पड़ा, उस वेरिएबल में फिर वापस से इसको स्ट्रिंग को हमने फॉर लूप की हेल्प से रिवर्स करा। बट यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं करा, हमने बस हमारा एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक रिवर्स मेथड लगा दी, सिंपल, that's it, and we are done. So these are the two methods which you can use to reverse a string. Practice it because it is important. Both the methods are very efficient, but I will say कि ये वाला मेथड ज्यादा efficient और easy है, बस आपको reverse method use करना है, कोई for loop नहीं, कोई iteration नहीं, कुछ नहीं। This was our problem 47. Practice it. Let me know in comment section if you have any suggestion, if you have any doubt, if this tutorial, if this problem was helpful, if you were looking for this problem and it helped you, do like the video. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है so do subscribe She Codes. I will be back with more such problems. Bye bye. Happy coding.